Good morning, students. I hope that I'm audible. Every one of you know that we have completed first two pages of this chapter. A question of trust we are reading, and we are supposed to complete the chapter, students. So be attentive, alert, and keep noting the word meanings. If you have any doubt, just note down them in your notebook or underline the words if you find. Though it is very easy, that's not a very difficult chapter, I would say. So be attentive so that we can complete the task today onwards. So students, read and find out. When we start with the third page, author is asking two questions. Who is the speaking to Horace Danby? Who is the real culprit in the story? These two questions have been put before us by the author, but we are going to read the text next. We just need to see how do we justify the things. So let's continue. When Horace Tenby went into the room, basically at the drawing room, so he got a sound or a voice of someone speaking. What happens next? It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. Now you see, बिल्कुल वो कहता है it was quiet, बिल्कुल kindly voice वो कहता है means बड़ी firm दयालुता की voice थी वो जो लगी उसको, but one with firmness, थोड़ी सख्ती थी उसके अंदर. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. So woman जो थी वहाँ पर दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, and Sherry was the dog. You can see in the picture also. The Sherry was rubbing, rub कर रहा था, उसको खींच रहा था against her, उसके leg के पास. She was young, quite pretty, and was dressed in red. वो जो lady थी, it was given the explanation about her. Young थी, very smart थी, quite pretty, and was dressed in red. और red color की उसने dress डाली थी. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Now see children, वो सीधे से जो है, she walked to the fireplace. Means वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर fireplace था. And straightened means होता है सीधा करना. The ornaments there, जो वहाँ पर सजावट का सामान रखा हुआ था ना, ornament को underline कर लेना. Just note it down, the सजावट का जो सामान रखा हुआ था, वो जो है उसको सीधा करने लगी, straightened करने लगी. Down Sherry, she sat. उसने डॉग को कहा कि नीचे बैठो Sherry. Anyone would think I'd been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. Now see students, जब वो डॉग को एड्रेस करने के बाद अब वो बोलती है anyone would think I'd been away for a month. कोई भी सोचेगा कि भाई मैं जो है पिछले एक महीने से घर से बाहर थी. She smiled at Horace. अब Horace को देखकर वो थोड़ा सा स्माइल करती है and went on और आगे बढ़ती है. However, फिर भी I came back just in time कि भाई मैं जो है टाइम पर जो है वापस आ गई. Though I didn't expect to meet a burglar. हालांकि वो कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई मुझे जो है एक चोर, एक सेंधमार से मेरी मीटिंग होने वाली है, बर्गलर से मेरी मीटिंग होने वाली है. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि भाई उस लेडी को देखने के बाद कि वो थोड़ी सी amused थी. Amused means to be funny. To be funny, like in talking, he just hoped at meeting him. उससे मिलने के बाद वो लेडी जो थी थोड़ी amused थी, तो उसको थोड़ी hope हुई, थोड़ी उम्मीद हुई कुछ. She smiled at he might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. और इस पर वो कहता है he might avoid. अब वो कहता है कि भाई वो जो है avoid कर सकता है, बच सकता है ट्रबल से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, अगर वो उसको अच्छे से ट्रीट करता है. हर द राइट वे मीन्स अच्छे से उसको ट्रीट करता है. He replied और उसको रिप्लाई करता है वो, I didn't expect to meet one of the family. मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि भाई मैं किसी
फैमिली मेंबर से मिलूंगा बेसिकली। दिस वाज सेड बाय हॉरिस टू दैट लेडी, उस लेडी को ये बोलता है। शी नॉडेड, नॉडेड मीन्स होता है अपना सिर हिलाना। I see what an inconvenience it is for you to meet me. मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें कितनी असुविधा, inconvenience means होता है स्टूडेंट्स असुविधा, it is for you to meet me, कि मुझसे मिलकर तुम्हें कितनी असुविधा हुई है। वो कहती है मैं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। What are you going to do? तुम क्या करने वाले हो ना? Horace said, my first thought was to run. और इस पर हॉरिस कहता है कि भाई मेरा फर्स्ट जो विचार था, थॉट था, दैट वाज टू रन, कि भाई मैं यहाँ से भाग जाऊं। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them about you. They would get you at once. Now you see, वो कहती है of course तुम जा सकते हो, अगर जाना चाहो दौड़ सकते हो, बट वो कहती है लेकिन मैं जो है पुलिस को कॉल कर दूंगी, टेलीफोन कर दूंगी, और वो जो है तुम्हें एकदम पकड़ लेंगे। At once means तुरंत, they would get you at once, तुरंत वो जो है तुम्हें पकड़ लेंगे। She tries to threaten him basically here, students. Now what we find, the lady was quite determined. She was not scared or like afraid from that burglar. She was talking straightforward. So let's go to next. Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then, और देखो हॉरिस ने क्या कहा कि भाई मैं जो है ना पहले टेलीफोन की वायर्स को कट कर दूंगा और तब, और ये कह करके थोड़ा हेजिटेट महसूस करता है वो। ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, थोड़ा हेजिटेट था। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। और वो कहते हैं बेसिकली कि भाई आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग, कि आप कुछ नहीं कर पाओगी कुछ समय के लिए, फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ ही घंटे काफी होंगे इसके लिए। She looked at him seriously. अब वो जो है ना लेडी उसकी तरफ बड़ा सीरियसली देखती है। You'd hurt me, तुम मुझे जो है हर्ट करने वाले हो, इंजर करने वाले हो, राइट। शी वॉज टॉकिंग टू हिम एंड शी वॉज आस्किंग टू हिम, बोलती है क्या तुम मुझे इंजर करने वाले हो। Horace paused and then said, Horace थोड़ा सा ब्रेक लेता है, pause means to have a small break, and then said, और कहता है I think I was trying to frighten you when I said that. और हॉरिस कहता है कि मैंने जब तुम्हें ये बात बोली, आई वॉज ट्राइंग, कि कहता मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें डराने की जब मैंने ये बात बोली। दैट मीन्स दिस वाज द टास्क टू जस्ट फ्राइटन हर, कि वो जो है उसको डराने की कोशिश कर रहा था। फ्राइटन, यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। शी सेड दिस। हॉरिस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरिस सजेस्ट करता है, उसको आइडिया देता है कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अगर भूल जाओ कि तुम मुझसे मिली थी, यू एवर सॉ मी, कि तुमने मुझे देखा था, तुम मुझसे मिली थी, और मुझे जाने दो, लेट मी गो। हॉरिस सेड दिस टू द लेडी। द वॉइस वाज सडनली शार्प, बड़ी तेजी से आवाज आती है एकदम से। व्हाई शुड आई, क्यों मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्यों तुम्हें जाने दूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, आप जो है मुझे, you were going to rob me. Rob means like तुम मेरे घर में चोरी करने वाले थे। If I let you go, अगर मैं तुम्हें जाने दूं, you'll only rob someone else, और तुम जो है किसी और को जाकर के रॉब करोगे, चोरी करोगे, वहां पर जाकर के किसी और के यहाँ जाकर के तुम चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और सोसाइटी जो है तुम जैसे लोगों से सेफ होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, प्रिजन में जाना पड़ेगा। मींस दिस वाज द टॉक बिटवीन देम। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस थोड़ी सी स्माइल करता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिससे कि सोसाइटी को कोई खतरा है। थ्रेटन्स मींस स्टूडेंट्स खतरा, कि भाई मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिससे कि किसी सोसाइटी को खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल वहीं से चुराता हूं जहां पर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मैं जो है एक अच्छे से रीजन, अच्छे से कॉज के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं बड़ा डिसलाइक करता हूँ जेल में जाने के विचार से ही, कि मेरे दिमाग में जो है जेल को लेकर के अगर कोई विचार आता है, सो आई हेट इट।
he says basically to that lady, उसको ये बात कहता है, she laughed, और इस पर वो हंसती है, and he begged thinking that he had persuaded her, और ये बात कहकर उसको ऐसा लगता है कि उसने उसको जो है मना लिया है. Persuade means to convince her, look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. अब वो कहता है कि भाई ठीक है, देखो मेरे पास कोई अधिकार तो नहीं है कि मैं आपसे कुछ पूछूं, बट आई एम डेस्परेट मीन्स थोड़ा हताश जिसको हम बोल देते हैं, हैरान, हताश, परेशान हो जाना. डेस्परेट था. लेट मी गो, कि मुझे जाने दो, एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. और वो कोशिश करता है उसको परसुएड करने की दैट नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में वो ऐसा काम अब नहीं करेगा. I really mean it. Really mean it means like students, he tries to convince her. उसको convince करने की कोशिश करता है वो उस लेडी को कि भाई तुम अगर मुझे जाने दो तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा. वो बोलता है I really mean it means वो कहता है कि मेरा actual the way I'm talking to you it's absolute correct. She was silent. थोड़ी देर के लिए वो चुप थी, watching him closely, और बड़े ध्यान से उसको देख रही थी. Then she said, you are really afraid of going to prison, aren't you? Now she is going to state something and asking a question also. वो उसको कहती है कि भाई you are really afraid of going to prison. तुम जेल जाने से काफी डरते हो, क्या ऐसा नहीं है? Aren't you? It's a question tag, students. She came over to him, shaking her head. वो थोड़ा उसके क्लोज आती है, उसके नजदीक, और अपने सर को हिलाते हुए कहती है, I've always liked the worst kind of people. Worst kind of people means बुरे लोग, बदतर लोग जो हैं, जो गलत काम करते हैं. वो कहती है मैंने इस तरह के लोगों को बड़ा लाइक किया है जो ये गलत काम करते हैं. Right? She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. और वो जो है सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से, और उसमें उसे took a cigarette from it, और इससे एक सिगरेट निकाल देती है बाहर. हॉरेस eager to please her, और हॉरेस जो है ना महसूस करता है कि भी मैं जो है ना उसको थोड़ा सा खुश कर दूं. ईगर उत्सुक होता है, ईगर मीन्स होता है उत्सुक, एंड प्लीज मीन्स हियर खुश करना उसको. एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और इस पर वो महसूस करता है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है. took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अपने ग्लव्स को वो took off means उतार देता है जो उसने डाले हुए थे, and gave her, और उसको देता है एक सिगरेट, जो उसके पास सिगरेट जलाने का लाइटर होता है, और वो लाइटर निकाल करके वो उसे ऑफर करता है. You let me go. He held the lighter towards her. लाइटर को उसकी तरफ करते हुए कहता है कि आप मुझे जाने दोगे. Means he speaks in an expectant way. इस तरह से बातें करता है that he is expecting the things are going to be positive in his favor basically. Then yes, but only if you'll do something for me. Now the lady talks to him or says कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, but फिर भी वो कहती है कि तुम अगर मेरे लिए कुछ करो. You'll do something for me. Anything you say. Now the burglar said, anything you say means जो भी आप कहो, जो भी काम आप कहोगे मैं उसको करूंगा. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank. अब the lady is talking to Horace, उसको कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि हमारी जो ज्वेलरी है, ज्वेल्स जो है, उसे जो है मैं बैंक में रख दूंगी. बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ. लेकिन मैंने वो सारी ज्वेलरी जो है सेफ में यहाँ पर रख दी थी. आई वांट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम. और मुझे ये जो ज्वेल्स है, जो ज्वेलरी है, आज रात की पार्टी में, टुनाइट आज रात की पार्टी में इसको पहनना है, यूज करना है, और इसके लिए मैं जो है अभी नीचे आई थी. सो आई केम डाउन टू गेट देम, उसे लेने के लिए. बट एज शी सेज बट, जैसे ही वो ये बट बोलती है, ही इंटरप्ट्स हर, और वो जो है उसको इंटरप्ट करता हुआ बोलता है, इमीडिएट उसको बोलता है, जैसे ही उसने बोला कि बट, हॉरेस स्माइल करते हुए कहता है, उसने स्माइल की वहां पर, यू फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? और कहता है कि तुम जो है ये भूल गई हो जो तुम्हारे नंबर्स थे जिससे वो सेफ ओपन होती है, क्या ऐसा नहीं है? हैवंट यू? तुम नहीं भूले हो?
means he's asking a question also, that's question tag basically, students. So he is having a bit expectation from her. Yes, replied the young lady. और जो young lady थी वो reply करती है कि हाँ मैं भूल गई हूँ. Just leave it to me and you'll have them within an hour. और ये तुम जो है ना मेरे ऊपर छोड़ दो सारा काम, ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे में ये निकाल के दे दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे जो है तुम्हारी सेफ तिजोरी को जो है तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ. अब वो कहती है कि भाई इसके बारे में तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मेरा हस्बैंड जो है 1 महीने तक यहाँ पर नहीं है. एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. और उस समय तक जो है मैं इस तिजोरी को, सेफ को जो है, मेंडेड मीन्स स्टूडेंट रिपेयर कराना, और मैं इसे उस समय तक जो है रिपेयर करा लूंगी, ठीक करा लूंगी उसके हस्बैंड के आने से पहले. वो कहती है कि भाई इट्स ओके, यू कैन ब्रेक द सेफ एंड बिफोर माय हस्बैंड कम्स आई विल मेंड इट. वो कहती है कि भाई मैं जो है ना इसे ठीक करा लूंगी. दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस. आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग प्रॉपरली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. And within an hour, Horace had opened the safe. और 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस ने जो है सेफ को ओपन कर दिया, जो तिजोरी थी उसको खोल दिया. गिवन हर द ज्यूल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे. और सारी ज्वेलरी वहां से निकाल करके उस लेडी को दे देता है वो, और वहां से खुशी खुशी चला जाता है. फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady. और 2 दिन तक उसने जो है जो प्रॉमिस उस दयालु लेडी से किया था उसको मेंटेन करने की उसने कोशिश की. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day. अब बात करें तो 3rd डे की वो बात करता है. सुबह सुबह 3rd डे मॉर्निंग में, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स. लेकिन फिर भी वो कहता है उसने बुक्स के बारे में काफी सोचा. बुक्स के बारे में, ही वाज थिंकिंग अबाउट द बुक्स. ही थॉट ऑफ द बुक्स. ही वांटेड, जिसको वो परचेज करना चाहता था, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ. और उसे ये पता था कि उसे कहीं दूसरी सेफ की रॉबरी करनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा. He was thinking such kind of things in his mind, but he never got the chance to begin his plan. लेकिन वो इस प्लान को बनाने का चांस ही नहीं मिल पाया उसे. He didn't get the time, he didn't get the chance कि भी वो प्लान बना सके. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. Now you see the strange thing happened with Horace standby students. What was that strange? कि भाई एक पुलिसमैन आता है और उसे अरेस्ट कर लेता है रॉबरी जहां पर हुई है Shotover Grange के अंदर. Now you see what was he thinking about the situation, about the lady, jewelry, the things happened at that Shotover Grange. Now the policeman has arrested him. A policeman has arrested him. जो रॉबरी उसने शॉटओवर ग्रेंज पर की. नाउ यू सी, आई होप यू अंडरस्टूड कि what happened. His fingerprints for he had opened the safe without gloves. Now you see, without gloves he opened the safe. उसने सेफ को बिना ग्लव्स के ओपन किया, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पर रह गए. ऑल ओवर द सेफ एंड द अदर प्लेसेस आल्सो वर ऑल ओवर द रूम. पूरे रूम में जहां जहां पर उसने अपने हैंड्स को यूज किया. And no one believed him. और किसी ने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया. When he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और इस बात पर किसी इंसान ने विश्वास नहीं किया कि भाई उसने जो सेफ ओपन की थी, वो सेफ जो है उसने किसके लिए ओपन की थी? That was opened for the owner's wife. उस घर के मालिक की वाइफ के लिए उसने वो सेफ ओपन की थी, उसमें से ज्वेलरी निकाली थी, दी थी. नो वन बिलीव्ड. किसी ने भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया. द वाइफ हरसेल्फ, उसकी वाइफ ने भी, उस ऑनर की वाइफ ने भी, अ ग्रे हेयर्ड, जिसके हेयर ग्रे हैं, शार्प टर्न्ड वुमेन, बड़ा तेज बोलने वाली औरत, ऑफ 60, जिसकी उम्र 60 ईयर्स है, 60 साल की है वो, said that the story was nonsense, कि जो कहानी वो बता रहा था, जो स्टोरी वो बता रहा था to the police people, it was nonsense, बिल्कुल बेकार थी वो कहती है लेडी उसको कि भाई ये जो स्टोरी है that's not good enough, भाई अच्छी नहीं है, you are telling the wrong things to me.
You are explaining the wrong things to me. The story was not justified. Nonsense. Horace is now the assistant librarian in the prison. और हॉरेस जो था अब प्रिजन जो जेल होती है, जेल की लाइब्रेरी के अंदर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन था. He often thinks of the charming, और प्राय जो है वो सोचता है चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, उस यंग लेडी के बारे में, who was in the same profession, जो कि सेम प्रोफेशन में थी जो कि हॉरेस टेन बाय का प्रोफेशन था, as he was, जो कि उसका था, and who tricked him, जिसने कि उसे ट्रिक किया. ट्रिक मीन्स लाइक स्टूडेंट्स टू चीट हिम in a different way basically. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. और हॉरेस टेन बाय को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है. He feels very angry, excited when someone talks कि भाई honor among thieves means जो चोर होते हैं ना उनके बीच में भी एक सम्मान, एक इज्जत होती है, right? When someone talks, naturally तो people बात करते हैं, but when people talk about among thieves, about the honor, so this Horace ten by feels very like angry. He feels excited in that, angry महसूस करता है इस बात को लेकर के. Now see children how that lady cheated Horace ten by. किस तरह से Horace ten by को उसने जो है चीट किया बेसिकली, कैसे जो है उसने उसको यूज किया and got complete jewelry, and that was the point basically. So students, that's enough for the lecture. Bye now. Now you need to see students NCERT questions answers I'll send you by PDF. Tomorrow you'll get it in your homework. But some other questions, there can be many more questions. Only those students will be able to solve these other questions who just read the text properly. The one who reads the text properly will be able to give the answers. And when the questions are put in a different sense, or like though these will be based on your text, the chapter you are reading these days, this will be out of that basically from that, but the questions will be twisted. Though you need to do one thing, you need to read the text thoroughly, properly, and a few difficult words are there in the chapter. You are supposed to memorize them. You are supposed to put them in your day-to-day vocab so that you can understand the points basically. Now students, I'll